Hello students, I am Neha Singh, Faculty of Commerce and Management at OSN Academy. The topic that we will be discussing today is elasticity of demand. So before understanding elasticity of demand, we need to do a quick recap of what is demand. A demand में क्या चीज होती है जो डिमांड होती है और डिमांड का लॉ क्या है? The law of demand says that other thing remaining same, मतलब ceteris paribus theorem. If there is increase in prices, the demand of quantity will decline and vice versa. What is demand? If you want to consume something and you have the purchasing power and ability and willingness to purchase that commodity, that is demand. In simple term, in layman term, demand का मतलब यही है. If you want to have something and you are having the money to buy that commodity, so basically what will happen कि आपके taste, preferences and prices पे आपके demand determine होगी. These are the factors which determines the demand. So we need to understand the topic that we will be covering today is elasticity of demand. Elasticity we can understand it just like the rubber band. अगर हम उसको ज्यादा stretch करते हैं तो वो बहुत ज्यादा stretch हो जाता है और अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो वापस वो अपने फॉर्म पे आ जाता है. What exactly that way we will be understanding elasticity of demand. Elasticity of demand exactly है क्या? To understand elasticity of demand हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है. Suppose this is the market that I am having. अब मुझे अगर मार्केट चाहिए एंड इट इज अ नेसेसिटी तो इसके प्राइस में कितने भी चेंजेस हो जाए मुझे ये खरीदना है मैं खरीदूंगी. ऑलराइट, दैट इज इनइलास्टिक डिमांड. ऑलराइट, लेकिन अगर इसको पोस्टपोन कर सकती हूँ फ्यूचर के लिए तो क्या हो जाएगा? जो आपकी इलास्टिसिटी है वो अब इनइलास्टिक ना होके इलास्टिक हो जाएगी. दैट मीन्स इट कैन बी पोस्टपोन्ड, इट कैन बी स्ट्रेच्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड हाउ टू नो कि कितनी ज्यादा आपको उस कमोडिटी की रिक्वायरमेंट है. और अगर परसेंटेज चेंज जो हो रही है बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स, द फैक्टर्स कुड बी एनी, इनकम, the prices of complementary goods, the prices of substitute goods, the income of the consumers and the prices of the commodities. इसके बेसिस पे आप जो भी वेरिएशंस कर सकते हैं डिमांड में उसको पोस्टपोन कर सकते हैं कि अभी इमिडिएटली चाहिए. वो कितना ज्यादा वेरिएशंस हो सकता है उसको नापने के लिए कोई चीज हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड में नहीं पढ़ी थी. टू अंडरस्टैंड इट, हाउ मच इज द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड और डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कितना है टू फॉर द कमोडिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू द चेंजेस इन प्राइसेस. हम आज के टॉपिक में इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे. सो बेसिकली इफ वी से व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज द रेशियो ऑफ percentage change in the quantity demanded to the percentage change in prices. प्राइस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है एंड रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस भी हो सकते हैं. दैट मीन्स your cross elasticity of demand. So these are different types of elasticities. अगर हम बोले elasticity of demand, price elasticity of demand, so at that time we will be keeping other things constant and we will be discussing about what will be changed in the quantity demanded in respect to the change in the prices. Simple example हम अगर लें और हम लोग ये वाला example लें कि suppose करिए the prices of onions और इन विंटर सीजन प्राइसेस ऑफ टमाटोज एंड अनियंस एकदम से हमारे बढ़ गए हैं तो क्या होगा? वी नीड दैट कमोडिटी. इफ वी ऑलरेडी हैव वी कैन पोस्टपोन द डिमांड टिल द प्राइसेस कम्स बैक टू द नॉर्मल रेंज. अगर हम उसको नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इट इज अ फूड आइटम तो कितना भी प्राइस में चेंज हो जाए, बहुत ज्यादा अगर प्राइस में चेंज होगा तब भी हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा. ऑलराइट, that is your relatively inelastic demand. So basically if we understand elasticity क्या होती है या फिर what are the factors which actually decide कि how much degree or what would be the change in the prices or in the quantity demanded, इन सबकी जो पूरी की पूरी स्टडी है that is known as elasticity of demand. So basically if we say what is elasticity of demand, it is the degree of responsiveness of quantity demanded to the change in the prices. और इसको एक और चीज हम बोलते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग ये समझें कि हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटीज हैं या फिर हमारी इनकम इलास्टिसिटी है या फिर अगर हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है तो बेसिकली ये जो तीन तरीके हैं इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे. वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Before going to the price elasticity of demand, let's try to understand what we are saying.
We are saying that whatever is the percentage change, if we say what is the elasticity, elasticity, अगर हम price elasticity के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि prices के बारे में percentage change in the quantity demanded to the percentage change in the prices of the commodities. How we will determine how much is the percentage change? इसी को हम लोग आज पहले न्यूमेरिकल फॉर्म में समझेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी जो डिमांड हमने करी है वो पहले अगर आप 15 ले रहे थे तो अभी आप 25 ले रहे हैं. ये आप कब कर रहे हैं? तब कर रहे हैं जब आपके प्राइसेस अगर पहले 10 रुपए रहे होंगे तो अब 8 रुपए हो गए होंगे. तो हाउ डू वी कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड? कैसे पता लगा रहे हैं? द न्यू कमोडिटी क्वांटिटी एंड द ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी अपॉन प्राइसेस में भी हम सेम चेंज करेंगे. न्यू प्राइस जो आया है माइनस द ओरिजिनल प्राइस, दैट इज द परसेंटेज चेंज टू द प्राइसेस. इसको लिखने का एक और तरीका क्या है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड upon percentage change in prices. What will be the formula? Now we finally formula हमारा क्या निकल के आएगा? Change in quantity upon change in price into price upon quantity. Simple. To understand it in a numerical form, let's take the example. Suppose there is a commodity and the prices, the original prices were ₹8 और अब उसका जो न्यू प्राइस हुआ है वो हो गया है 10. इनफैक्ट वी शुड स्टार्ट इट कि प्राइस डिक्रीज होगा तो कैसे होगा, बाद में प्राइस पे जाएंगे, बिकॉज हम लोग ज्यादा रिलेट तब कर पाते हैं जब किसी चीज की प्राइसेस कम हो रही होती है और क्वांटिटी डिमांडेड हमारी उस कमोडिटी की ज्यादा हो जाती है. तो वील टेक बोथ द एग्जांपल. लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. 10 रुपए अगर प्राइस है और बाद में उसका प्राइस अगर फॉल हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या रही होगी? अगर पहले 25 रही होगी या 15 रही होगी तो अब कितनी हो जाएगी? जब प्राइस घटा है तो क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज टू 25. सो व्हाट विल हैपन एट दिस प्लेस? अगर हम लोग ये सेम फॉर्मूला लगाएं तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 8 - 2 एंड Q1 - Q 10. अच्छा, one more thing to understand. Whenever we'll study about elasticity of law of demand, वहां पे क्या होता है? There is always inverse relationship. So mathematically there will be a negative sign. But जब हम लोग economics में पढ़ रहे हैं तो what we are concerned with, how much is the change? चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो. That is why we ignore the sign when we solve the questions. Okay, so now applying this same formula that we just saw, change in quantity हमारी कितनी रही है? 10. Change in price 2 into ओरिजिनल प्राइस कितना था? 10 एंड ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी कितनी थी? 15. व्हाट विल कम? 100 by 30, दैट विल गिव यू 3.33. सिंपल मैथ्स. 100 को डिवाइड करेंगे 30 से कितना आएगा? 30 की टेबल पढ़ के 3 3 9, 3.33. सेम वेज अगर हम लोग इस एग्जाम्पल में ये समझें कि हमारी प्राइसेस अगर घटी हैं तो क्या हुआ होगा? टेकिंग द सेम वेरी एग्जाम्पल, suppose taking the other example, now we are saying the original price at this time was ₹8 and the increased price is ₹10. ठीक है, we have studied when there is decrease in price what happens? The quantity demanded increases and elasticity of demand में क्या फर्क पड़ेगा? कितना चेंज आएगा? अभी हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं. Now suppose when the prices are less तो क्वांटिटी हमारी डिमांडेड ज्यादा रही होगी and when the prices increase the quantity demanded decreases to 15 rupees. The change is same, 2 rupees and -10. We ignore the minus sign, so what will come? Change in quantity demanded upon change in price into. अब हम लोगों को यहाँ समझना है कि ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी रही है. ओरिजिनल क्वांटिटी was 25 and प्राइस और हमारा कितना रहा है? 8 रुपए हमारा ओरिजिनल प्राइस रहा है एंड क्वांटिटी डिमांडेड हमारी जो है वो 25 रही है. तो कितना हुआ? 80 by 50 विच विल गिव यू 1.6.
What is the change in the elasticity of demand when we calculated with the same change? Change हमारा same है, either there is 2 rupees change, या तो ज्यादा हुआ या कम हुआ है, quantity में भी same change है, but when there is decrease in price तब हमें दिख रहा है elasticity of demand हमारी ज्यादा है, थोड़ा सा भी प्राइस कम हुआ इंसान ज्यादा कमोडिटीज परचेज करना चाहता है, लेकिन जब प्राइसेस बढ़ते हैं तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? लगभग आधी हो जाती है। ठीक, तो दिस इज अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझ रहे हैं तो जो हमारे ये फॉर्मूलेज हम लोगों ने लगाए हैं, सेम वेज अगर हमको इनकम इलास्टिसिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा? इनकम इलास्टिसिटी में क्या होगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू दी परसेंटेज चेंज इन दी इनकम। इनकम को हम अगर y मान ले रहे हैं, अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला में क्या निकल के आएगा? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन इनकम इनटू इनकम अपॉन क्वांटिटी। दिस विल बी योर फॉर्मूला। हमेशा जब इसका हम लोग बात करें तो हमारा इसका रिलेशनशिप हमेशा कैसी होती है? If there is increase in income, मतलब a person is having more money to spend on the commodities, what will happen? There will be a direct relationship. So it will always be positive. इसका जब भी ग्राफ बनेगा, it will be positively sloped because an increase in income will result in the increase in the quantity demanded. But when we have to look at the complementary goods or substitute goods, जिसको हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोलते हैं या फिर इलास्टिसिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स, what happens at that time? The formula is same. There it will be percentage change in quantity demanded of x. अगर हमें क्रॉस इलास्टिसिटी समझनी है तब हम लोग कैसे समझेंगे? पहले तो हम ये समझें कि क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। क्रॉस इलास्टिसिटी मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द रिलेटेड गुड्स। ठीक है, suppose we take the example of tea and coffee. They are substitute goods. A person will either have a cup of tea or a cup of coffee. All right. Suppose the prices of tea decreases. What will happen? Price of tea, चाय की prices घट रहे हैं, लेकिन quantity demanded किसकी घट रही है? आप क्या चीज ज्यादा consume करोगे? You will consume more of tea. Why? Because relatively your coffee has become expensive. So there will always be a positive slope. तो हमेशा ये positively sloped रहेगा. It will always be positive. कब? Substitute goods के cases में. But अगर हम complementary goods के बारे में बात करें, simple example, car and petrol, और किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की चाहे स्कूटी ले लीजिए चाहे कार ले लीजिए, what will happen? When there is increase in price of petrol, क्या होगा? It will directly affect the sale of the cars. What will happen? The sale of the cars will decline. So there will be inverse relationship. So it will always be negative. All right. तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या देखते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। किसी भी एक चीज की प्राइस पे, एक कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने से दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में क्या असर आता है? दैट इज व्हाट वी स्टडी इन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लिया है हमने और एक हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स लिया है। कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल हम लोगों ने कार एंड पेट्रोल लिया है एंड सब्स्टिट्यूट का हम लोगों ने टी एंड कॉफी लिया है। ऑलराइट, एंड वी नो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होगा बिकॉज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन सेल ऑफ कार्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? किसी भी एक कमोडिटी की जब प्राइस घटती है तो रिलेटिवली वो सस्ता हो जाता है, दूसरी कमोडिटी की जो डिमांड है वो घट जाती है। इनकम इलास्टिसिटी हमेशा आपकी पॉजिटिव होगी। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू विल बी हैविंग मोर मनी इन योर हैंड टू स्पेंड ऑन द कमोडिटीज, you will end up buying more of that commodity. So this is about the elasticity of demand. These are the 3 main important factors
which determine the elasticity of demand. Those are price, income and related growth, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें से हम लोग आज डिटेल में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछेंगे, पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके इसी से आते हैं।